Good morning to all the students of class 8th. In our last videos, we discussed all the properties of rational numbers. Now, in this video, we are going to discuss some more topics of rational numbers, that are rational numbers on the number line and rational numbers between two rational numbers. So students, let's start from the first topic, rational numbers on the number line. Rational number on the number line. A number line can be used to show the sets of natural number, whole numbers and integers. Values greater than 0 or positive numbers are listed to the right of 0, and values less than 0 or negative numbers are listed to the left of 0. Students, you all know about नंबर लाइन. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइन ड्रॉ भी करी है. आप सभी जानते हैं नंबर लाइन में हम नेचुरल नंबर्स भी शो कर सकते हैं, होल नंबर्स भी शो कर सकते हैं एंड इंटीजर्स भी शो कर सकते हैं. आप सभी को पता है हमारी नंबर लाइन में जो सेंटर नंबर होता है दैट इज़ 0. ऑल द पॉजिटिव नंबर्स और ग्रेटर देन 0 आर listed from the right of the 0 and all the negative numbers are from left of the 0. I have drawn here a number line. Let's have a look. 0 is the center number. All the numbers greater than 0 or positive numbers are from the right of the 0 and all the negative numbers are from the left of the 0. But now we have to draw rational number on a number line. Students, you know about rational numbers. Rational number is any number that can be written in the form of a upon b, where a and b are integers and b not equals to 0. हमारा रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ a और b क्या होंगे? इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0. आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल हेयर. 1/2 minus 2/3, 17/5, 15/-3, minus 14/-11, 3/1, 265/99. Now, rational number can be expressed as a decimal that terminates or as decimal that repeats indefinitely. Means हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं डिवाइड करके. दैट टर्मिनेट्स, जो कि टर्मिनेट भी हो सकता है. टर्मिनेट मीन्स जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड करने पर. और एज डेसिमल दैट रिपीट्स इनडेफिनेटली, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, कुछ नंबर उसमें रिपीट होता रहा है, तो उसे हम बोलते हैं रिपीट्स और रिकरिंग. Suppose 1/2 equals to 0.5. 0.5 is terminating decimal. Minus 2/3 equals to 0.3 पे बार. It means here 3 is repeating और recurring. यहाँ पर 3 ये नंबर completely divide नहीं हो रहा है. 3 जो है repeat हो रहा है बार बार. 17/5 equals to 3.4. 15/-3 equals to -5. 3/1 equals to 3. 265/99 equals to 2.676767. Here 67 is repeating. Now I have taken one example how to represent number line 4/9 on a number line. Represent 4/9 on a number line. I have written, students, two steps here. Step 1 is, in a rational number, the numeral below the bar, that is the denominator, tells the number of equal parts into which the first unit has been divided. The numeral above the bar, that is the numerator, tells how many of these parts are considered. It means हमें सबसे पहले जब रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम अपने डिनोमिनेटर को चेक करेंगे. हमारा जितना डिनोमिनेटर होगा वी नीड टू डिवाइड आवर फर्स्ट यूनिट इनटू दैट इक्वल पार्ट्स. इट मीन्स अगर हेयर 9 इज अ डिनोमिनेटर, सो वी नीड टू डिवाइड फर्स्ट यूनिट इनटू 9 पार्ट्स. हम अपनी फर्स्ट यूनिट में कितने पार्ट्स बनाएंगे? 9 इक्वल पार्ट्स. एंड फिर हम क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स? न्यूमरेटर. जितना हमारा न्यूमरेटर होगा हम उस वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे. ओके. सपोज वी हैव 4/9. तो
सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को चेक करते हुए क्या करना है, 9 इक्वल पार्ट्स बनाने 0 से 1 में। देखिए आप हर इक्वल जितना आपका डिनोमिनेटर होगा उतना का आप गैप लेंगे। जैसे अगर आपका डिनोमिनेटर 9 है तो आपको हर में 1/9 का गैप आएगा। देखिए 0, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9, हर यूनिट के बीच में 1/9 का गैप है। ओके, इक्वल गैप है। और लास्ट में क्या आ गया हमारा 9/9, 9/9 मीन्स 1। आप सभी को पता है 4/9 इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। और पॉजिटिव रेशनल नंबर किधर आते हैं नंबर लाइन में, हमेशा 0 के राइट में। तो हमने फर्स्ट क्या ले लिया 0, और 0 से राइट में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स बनेंगे। ओके, फिर हमें चेक किया, हमने इसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेबल कर दिया। अब आप न्यूमरेटर चेक करेंगे, हमें इस 9 पार्ट में से कौन सा पार्ट लेना कंसिडर करना है स्टूडेंट्स, 4th पार्ट। तो 4/9 इज अवर आंसर। ओके, सो this is the way how to represent rational number on the number line. So our next topic is rational numbers between two rational numbers. There are countless rational number between two rational numbers. हमारे किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में आप काउंटलेस रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। Here I have written some example how to find rational numbers between two rational number. Students, I have written two methods here. You can find rational numbers by any method. Example 1, rational number between 1 and 2. Here 1 and 2, अगर ये सिंपल आप नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं, इंटीजर्स भी कह सकते हैं। तो अगर आप इनके कहाँ अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो आप क्या यूज़ कर लेते हैं 1। तो 1/1, 2/1, इट इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। Our first method is average method. We know the average of two rational numbers lie between them and it is a rational number. आप सभी जानते हैं कि आप एवरेज कैसे निकालते हैं, उन दोनों नंबर को प्लस करके और 2 से डिवाइड। और हम उन दोनों नंबर का जब एवरेज निकालेंगे इट मीन्स दैट लाइज बिटवीन दैट टू नंबर्स। सो 1 and 2 के बीच में कौन सा नंबर आएगा स्टूडेंट्स, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 3/2। इट मीन्स 3/2 लाई बिटवीन 1 and 2। अब 3/2 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे, एंड 3/2 एंड 2 के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 2, एवरेज ऑफ 1 and 3/2। 1 and 3/2 का एवरेज क्या है स्टूडेंट्स, 5/4। इट मीन्स 1 and 3/2 के बीच में क्या आएगा 5/4। अगेन एवरेज ऑफ 3/2 and 2, answer is 7/4. It means 3/2, 5/4 and 7/4 are the three rational numbers that lies between 1 and 2. Second method is by converting the same denominators. अगर आप डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेंगे तो भी आप उन दोनों के नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है 1, लेकिन 1 और 2 के बीच में तो ऐसे तो कोई 1/1 और 2/1 के बीच में कोई रेशनल नंबर नहीं आता। तो आप उन दोनों नंबर में किसी ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसके बीच में आप बहुत सारे नंबर्स को फाइंड कर सकें। तो मैंने यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों में, 1/1 इंटू 10 इंटू 10 तो 10/10, 2/1 इंटू 10 की करी तो 20/10। अब 10 और 20 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे एंड यू हैव टू फाइंड ओनली 3 रेशनल नंबर्स, 11/12, 13/12, 14/12, 15/12, 16/12, 17/12, 18/12 and 19/12. You have write any 3. Next is example 2. Find 3 rational number between 1 and 3 and 7/2. This is rational number but denominators are not same. First method is same, average method. First you have to add both the two rational numbers and it divided by 2. So first step is 1/3 plus 7/2 divided by 2. Answer is 23/12. It means 23/12 lies between 1 and 3 and 7/2. सेकेंड इज़ अब आप 1/3 एंड 23/12 के बीच में निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 27/24। फिर अगेन 23/12 एंड 7/2, थर्ड स्टेप आंसर इज 65/24। सो 23/12, 27/24 and 65/24 are the 3 rational numbers that lie between 1/3 and 7/2. स्टूडेंट्स ये वाला मेथड कभी कभी हमारे लिए बहुत लॉन्ग हो जाता है,
इसमें हमें बहुत सारा कुछ करना होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो हमारी सेकंड मेथड होता है, ये थोड़ा सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है, बाय कन्वर्टिंग द सेम डिनोमिनेटर 1/3 एंड 7/2। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 2, तो एलसीएम इज 6। नाउ कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इनटू सेम वैल्यूज ऑफ, आपको क्या करना है, 6 वैल्यू करनी है। तो 3/2, 1/3, 3 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6 की, तो 3 इंटू 2 6 और 1 इंटू 2 2, 2/6। 7/2, अब 2 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की, तो 6 आएगा। तो अब हम रेशनल नंबर होगा 2/6 एंड 21/6। 2/6 और 21/6 डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब आप इनके बीच में जितने भी रेशनल नंबर आते हैं उसमें से कोई भी 3 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वे हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। थैंक यू।